Hello. Okay, very good afternoon. Shall we start now? Okay. So today what we are going to do is that how to find the attainment, how to calculate the attainment, how to insert the marks so that we can get the attainment. For that, we have to understand some things, some terminology for that. Okay, and after that we are going for that particular module, result analysis module, and we are going to implement such things that we are getting our attainment automatically without any calculation. So there are two types of attainment. First one is the direct attainment and second one is the indirect attainment. Direct attainments are those which are calculated by some evaluation and it is based on the syllabus. That is your direct attainment. And indirect attainments are those which are calculated by the different means like feedback, workshops and other things through which you are going to calculate. So there are two types of attainment. So it is for our college we have divided this, it may the ratio be a value. For our college we have decided that direct and indirect attainment attainment when we can divide it attainment we are dividing it into two categories. The first one is direct attainment and second is indirect attainment. The ratio for this is 80 and 20. Okay, so direct attainment is of 80%. If possible, please note down this ratio because it is going to be used further. Okay, so direct attainment is of 80% and indirect attainment is of 20%. Okay, so what we are going to deal with is direct attainment. In direct attainment, again, remember while we are going for our ERP, this 80% is scale up to 100%. So just consider it as a 100% now. Okay. Then after this direct attainment can be calculated on the basis of internal evaluation and external evaluation. Again, it can be calculated on the basis of internal evaluation and external evaluation. So what is the criteria to call that it is an internal evaluation and what is the criteria that this is an external evaluation? So if the question paper is said by someone else, not by us, if the question paper is said by someone else, not by us, or the checking of that, evaluation of that is done by someone else, then it is called as external. And both the things if we are doing by ourselves, then it is called as internal. Just consider that there is an exam examination, though we are evaluating the question answer book, but this question paper is set by someone else, hence it comes under the external. Right? So here again it is also divided into 20 and 80%. Please note down these numbers because we are going to use it further.
Okay. Now this 20% and 80%, again it is scale up to 100% in our ERP. Okay, so this is scale up to 100%. This is also scale up to 100%. Then it is clear. Okay. After this, we have to consider the area of the subjects. Only then we are going to calculate this. Again, some ratio will be controlled. So first, we are taking theory. Okay. So this theory, again there will be two. Okay, internal and external head. इंटरनल और एक्सटर्नल है, और हमने पहले देखा कि इससे प्रीवियस स्टेप में हमने इसको स्केल अप कितना कर लिया था 100%, राइट? यस और नो? इसे हमने कर लिया था 100% और एक्सटर्नल को भी हमने कर लिया था 100%, right? Now this external for our university SPPU, it might be different for diploma, okay? But just we are taking the examples of SPPU. You can change according to yourself. Okay. So this external exam is based on two categories, that is INSEM and ENSEM. Okay. So this INSEM is of 30% and this ENSEM is of 70%. अब यहाँ इसके बाद कोई स्केल अप नहीं होगा, 30% मतलब 30% ही कंसिडर होगा और ये 70% मतलब 70% ही कंसिडर होगा, राइट? अंडरस्टूड? नाउ इंटरनल में अब क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं? इंटरनल टूल्स क्या है हमारे इवैल्यूएशन में? यूनिट टेस्ट एंड असाइनमेंट, राइट? सो let it be unit test and assignment. Okay, so this unit test will become 50%, this assignment will become 50%. For which the question paper is sent by us and also the evaluation is done by us, that will come under the internal. Okay, so just consider it. Unit test 50%, assignment 50%. Now, in our department we are conducting 2 unit tests. So, again, this will be unit test 1, unit test 2,
it will become 25%, again it will become 25%. Understood? Yes or no? Okay. After this, assignment. Now, in our department, we have given the freedom that you can conduct either 3 or 6 assignments. You can take either 3 or 6 assignments. 6 assignments like this. For each CO, there will be 1 assignment. And 3 assignment is like that. 2 unit, 1 assignment. Okay. So we will consider both the examples. Okay. First, we will consider that there will be 2 unit and 1 assignment. Okay. That means 3 assignment for a subject. So this 50% will be divided into 3. Right. So it will become 16.33. But actually 16.33 ये हमारे PRT में पॉइंट में कैसे हम फ्रैक्शनल नंबर इंटर नहीं कर सकते. सो आप जो यूनिट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, सपोज मुझे यूनिट असाइनमेंट नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं उसके लिए 17% कर दूंगा और बचे हुए जो है उसके लिए दो जो है आपके वो 17% हो जाएंगे आपके और एक जो है वो 62. ये 2 पे डिपेंड करता है. कोर्स ऑनर पे अगेन देखो एक बात ध्यान में रखो, MBA जिस वक्त आता है हम ये NAC के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे जो कि ये है. आप MBA के लिए प्रिपेयर करोगे, NAC ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करोगे. MBA जब भी आता है वो कोर्स ओनर को पूछता है, जस्टिफिकेशन हर चीज का आपको देना है. वो एक एक सब्जेक्ट और टीचर को बुलाएगा, कोर्स फाइल लेके बुलाएगा और उस वक्त जस्टिफिकेशन आपको देना है. तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये 2 आपने 17% की लिया, ये 16% की लिया, लेकिन आपको ये करना ऐसे ही होगा 17, 17 एंड 16. राइट? यस और नो? ये समझ में आया आपके? और अगर ये 6 यूनिट पे लिया हुआ है आपने, या 6 असाइनमेंट लिए हुए तो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. राइट? ओके. सो ये उस तरीके से हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आया आपके? क्लियर? क्लियर? 6 यूनिट का करना है अभी. 6 यूनिट में करने की जरूरत नहीं है ना, आप इक्वली डिवाइड कर दो. क्लियर? Where is this now? ये था थ्योरी. ये थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे. अब दूसरा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है और टर्म वर्क, वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल और टर्म वर्क है. अगेन हमने इसको मैथ कितने पे किया था? 100% पे स्केल अप किया था. ओके. सो इसमें भी जो इंटरनल इवैल्यूएशन रहेगा आपके और एक्सटर्नल, ये 100% है आपका, ये 100% है. राइट? यस और नो? ओके. सो अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट को आप डिवाइड कैसे करोगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज इधर ध्यान दो. इस सब्जेक्ट को आप डिवाइड कैसे करोगे? इसके लिए
अब ये कैलकुलेशन के लिए हमें इस कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ये जो कैलकुलेशन करना है आपको, ये अभी डिग्री के लिए सभी को कंपलसरी किया गया है, राइट। अब ये हमने हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से ये किया हुआ है। एक्चुअली इसका ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कोड अलग होते हैं, डिग्री के सब्जेक्ट कोड अलग होते हैं, उस हिसाब से इसको मॉडिफाई किया हुआ है हमने। लेकिन यहाँ पर जो जरूरत पड़ने वाली है मुझे, वो इस पार्ट की पड़ने वाली है, ये सब में कंपलसरी इस कॉलम में, ओके। और ये बाकी चीजें जो देख रहे हो आप, ये रूब्रिक्स है। हमारे ERP में रूब्रिक्स इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम रूब्रिक्स पेपर पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन अटेनमेंट हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉलम की हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए ओके। सो मैंने फिर से वही पे, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है प्लस टर्म वर्क है, ओके। यहाँ पर फिर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये 100% कंसीडर करके चल रहे हैं हम, ये भी जो है वो 100% कंसीडर करके चल रहे हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कितने, डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कितने। सपोज आपके 10 प्रैक्टिकल्स है, तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 10%, 10%, 10% टिल लाइक दिस। ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया, 100 डिवाइडेड बाय 10। अगर आपके 5 प्रैक्टिकल होते हैं, 5 प्रैक्टिकल्स, 100 डिवाइडेड बाय 5। इससे ज़्यादा होते उस तरीके से, कम ज़्यादा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिसाइड करना। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। आफ्टर दिस, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सटर्नल। आप एक्सटर्नल मार्क को डायरेक्ट डाल दोगे, जो भी मार्क दिए वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंटर करना है। डायरेक्ट 100% मतलब यहाँ पर वही मार्क डायरेक्टली इंटर कर देंगे आपको। इसको इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड नहीं कर सकते। वी आर इन ईयर 2, वी आर नॉट इन ईयर 1, ओके। जो ईयर 2 में होने की वजह से जो एक्सटर्नल ने मार्क दिए हुए हैं वो एज इट इज आप वहाँ पर इंटर कर देंगे, राइट। लेकिन इसका प्रूफ क्या चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है प्रूफ का। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लेते वक्त एक शीट मेंटेन करनी है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सा प्रैक्टिकल आया हुआ है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सा प्रैक्टिकल आया हुआ था, और उस हिसाब से फिर ये सारा मैनिपुलेट होगा। मैं आगे बताऊंगा आपको ये प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करें, ओके। सो आपको एक शीट मेंटेन करनी है कि उस पर्टिकुलर बच्चे को कौन सा प्रैक्टिकल आया था। ऐसा हर बच्चे की आपको शीट मेंटेन करनी है, उस पर इंटरनल की साइन और एक्सटर्नल की साइन, ये चाहिए आपको। अदरवाइज आप प्रूव नहीं कर सकते कि उसको पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल आया। वो प्रैक्टिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बेस आपको CO की अटेंडेंस निकालना है। हर प्रैक्टिकल अलग CO पे हो सकता है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर आपको ये मेंटेन करना है। मैम आपके केस में डायरेक्टली इंटरनल एग्जाम होती है, तो उस वक्त आप यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इंटरनल में एक प्रैक्टिकल का, और आप 50% में आपके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? क्लियर? अंडरस्टूड? अगर ये आपके
प्रैक्टिकल ना होते हुए ओरल है। ये हमारा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस इस साइड में आएंगे। प्रूफ नहीं। अब आपको एक ऐसी शीट मेंटेन करनी है जिसमें आपने हर स्टूडेंट को हर सीओ पे एक क्वेश्चन पूछा है। ओरल है, आपने हर स्टूडेंट को, यानी अगर आपके 6 सीओ है तो आपने हर स्टूडेंट को 6 क्वेश्चन पूछे और 6 क्वेश्चन जो थे वो हर एक सीओ पे एक क्वेश्चन। फिर उसने करेक्ट आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दिया, फिर वो आपको वहां पर मेंटेन रखना। कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है इसलिए एक भी है। ओके, तो आपको एक शीट ऐसी मेंटेन करनी है जिसमें हर सीओ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा, नीचे साइन ली और फिर उसके बाद आपने मार्क्स। अंडरस्टूड? ये समझ में आया आपके? ठीक है। अगर सिर्फ टर्म वर्क है, अगर सिर्फ टर्म वर्क है, ये वाली ब्रांच ही नहीं रहेगी पूरी। अगर सिर्फ टर्म वर्क है सिर्फ ये ही रहेगा। आपके क्वेश्चन होंगे ना, नोट डाउन करके रखो। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देखने के लिए। ओके, बाद में हम फिर वो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है आपके? ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। होप आपने वेटेज लिख के रखेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट का और कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या? ये सब इसी में सब कुछ। प्रोजेक्ट भी आपका इसी में आएगा, सेमिनार भी इसी में आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इसी में सब कुछ रहेगा आपके। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। सो लेट अस इम्प्लीमेंट दिस। आने के लिए सबसे पहला रोल शुरू होता है एचओडी का। एचओडी को यहाँ पर आउटकम करके जो मॉड्यूल नजर आ रहा है, इस मॉड्यूल में आपके सारे पीओ सीओ पीओ सॉरी आपके सारे पीओ आपको ऐड करने हैं, पीएसओ ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आउटकम सेटिंग नजर आ रही है आपको, इस आउटकम सेटिंग में जाना है और ये जो कुछ अभी हमने पढ़ा वही है सर। ओके, ये वही है आपका जो डायरेक्ट अटेनमेंट है,
अटेंडेंट, डायरेक्ट अटेंडेंट 80%, इनडायरेक्ट अटेंडेंट आपकी 20%, उसके बाद आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है 20-80%। उसके यहाँ पर ये आपका जो है लेवल है कि आपका अटेंडेंट कब कहलाएगा कि अगर आपका 61 to 100% अगर आता है तो लेवल 3, ओके। उसके बाद अगर आपका 51 to 60 आता है तो ये लेवल 2, 40 to 50 आता है तो लेवल 1। एक्चुअली ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। एक्चुअली ये रेंज शुरू होती है 50% से, 50 to 61 है, 60 to 72 है और 70 प्लस जो है वो 3 लेवल। सेम यहाँ पर आपके ये इसके लिए ये सेटिंग एचओडी के लॉगिंग में इनेबल है, ये सिर्फ एचओडी को करना है, इसके अलावा किसी को नहीं। अरे एक ही बार करना है, बाद में ये आपका रिफ्लेक्ट होते रहेगा, हर सेमेस्टर में नहीं करना, ऐसे कई बार सेटिंग करनी है। उसके अलावा अगर ये नहीं है आपका, आपने सारे मार्क भर दिए, सब कुछ कर दिया तो भी अटेंडेंट आएगा नहीं। ओके, आफ्टर दिस ये एक्सपेक्टेड है मैम। यहाँ पर रोल आता है एमसी का, एकेडमिक मॉनिटरिंग कमेटी और आईकेएसी ने जो डिसाइड किया उसका एक डॉक्यूमेंट एक्चुअली हम लोग को मेंटेन रखना होगा। अगर आईकेएसी ने डिसाइड किया तो कॉमन रहेगी। हाँ, वो एक डॉक्यूमेंट आईकेएसी को देना चाहिए। एक्चुअली इसके एक मीटिंग लेकर आईकेएसी और एएमसी ये दोनों की कंबाइंड मीटिंग चाहिए और उसमें ये फाइनल होकर एक डॉक्यूमेंट जो हर एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा वो एचओडी फाइल में मेंटेन रहेगा और उस हिसाब से भी आप लोग कर सकते। तो ये मेरे जिसे कहूँ या मेरे अंदर क्या वो थ्रेशोल्ड चेंज होगी, थ्रेशोल्ड नहीं अपने यहाँ पे वैसे नहीं होता है सर। नॉर्मली मैंने लेकिन क्योंकि मेरे जो है लेवल आपको लेवल चेंज कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लो है तो लेवल चेंज हो सकता है। सर उस वक्त हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को नीचे ला सकते हैं, 40% ला सकते हैं, 40% ला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दिया है कि अगर बच्चा 50% से आगे बच्चे थ्रेशोल्ड अब थ्रेशोल्ड जा रहे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट में ऐसा हो ही नहीं रहा तो कैसे करें? लेवल आएगी नहीं जाएगी। आपको कुछ समझना नहीं तो 80 आणि 20 ह्या ज्या लेवल्स आहेत त्या आपल्याला एव्हरी मॅन्युअली फिक्स करून दिलेल्या आहेत. सो ॲज अ इन्स्टिट्यूट वी आर नॉट अलाउड टू चेंज 80 and 20. दिस इज वन पॉइंट एंड एवरीवन शुड बी वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट. ओके 80 and 1 दुसरे ह्या ज्या लेवल्स आहेत 50, 60, 70 च्या लेवल्स आहेत, जसं आता सरांनी सांगितलं आयक्यूएसी अँड एएमसी विल डिसाइड अँड दे विल जनरेट द पॉलिसी अँड इट विल बी ॲप्लिकेबल फॉर एव्हरीवन, राईट. मागच्या टाईमच्या वेळेस याची पॉलिसी तयार करून काही अटेंडमेंटच्या लेवल जेव्हा आपण ऑफलाईन सीआयएस करत होतो त्यावेळेस ह्या लेवल्स आपण ऑलरेडी ठरवून दिलेल्या होत्या, पण काही स्टाफनी काही डिपार्टमेंटला त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी ते चेंज केल्या, त्यामुळे अटेंडमेंटमध्ये खूप सारे व्हेरिएशन्स आलेले. प्रत्येक वेळेस मी मॅथच्या वेळेसही मला वाटतं एएमसी युनिव्हर्सिटी आहे मी सांगितलं
सब्जेक्ट ऑनलाईन सब्जेक्ट आहे त्याला जर 90 ऑफ मार्क्स करत आहे तर त्या लेवलचं आपण त्या आपली ही जी ERP आहे ना सर, आपली ही जी ERP आहे ना, ही ERP ह्या गोष्टीसाठी काम करते आहे. तुम्हाला तुमचं म्हणणं पण बरोबर आहे, पण सध्या ज्या ERPतून आपण अटेंडमेंट कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करतोय, दॅट इज यू कॅन से दॅट इज अ लिमिटेशन, राईट? आता प्रॉब्लेम काय झाला मॅडम हे सेशन चालू तर आम्ही मागच्या सेमिस्टरचं डिप्लोमा लास्ट सेमिस्टरची अटेंडमेंट काढलेली आणि आम्ही जे काय GPSCच्या गायडन्सने काम करतो त्यांचं ते एक्सेल शीट ते पूर्ण एक्सेलवरच काम करतो आणि त्या शीटनुसार आम्ही अटेंडमेंट कॅल्क्युलेट करतो. म्हणजे ERPतून नाही करत नाही, आहे. नाही. आपण सध्या ERPतून अटेंडमेंट काय होतं की कशी आता आमची फॅकल्टी जी आहे ना कन्फ्यूज व्हायला लागली. नाही, आपण आपल्याकडे आहे 60-40 ऑफ सर हे जे सेशन आहे ना सर घेत आहे हे ह्या आपल्या DMU लाईफमध्ये ह्या ERPतून अटेंडमेंट कशी कॅल्क्युलेट करायची त्याविषयीचं सेशन आहे. काय होतं का असं वेगळं काम होतं नाही तुम्ही आपलं इथे काम सर तुम्ही करतोय आता हे ऐकून घ्या. सर ऐकून घ्या हे. 2 मिनट कल प्रिंसिपल सर ने बोला हुआ है ये 24 एडमिट होता है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है डिप्लोमा के लिए सर फॉर्मेट चेंज करने के लिए नहीं होगा ये अभी हमें जाना है ये बराबर है लेकिन आप जो क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं ना सर वो प्रैक्टिकल ये जो हमारे एलएसपीटी का जो है ना वो सिलेबस जो है करिकुलम भाई मैंने कहा ना आपको कि आप ये कर सकते हो ये वेटेज कहाँ पर यूज होने वाला है मैं आपको भी बता रहा हूँ वहाँ पर आप वेटेज नहीं वो बात नहीं होती है आप जो वेटेज की बात कर रहे हो तो वेटेज आप अलग अलग है ये कर सकते हो वेटेज चेंज कर सकते हो दूसरी चीज़ कि ये डिप्लोमा के लिए कंपल्शन नहीं किया गया है ये डिग्री के लिए कंपल्सरी है डिप्लोमा के लिए कंपल्सरी है डिग्री के लिए कंपल्सरी आपका आपका फॉर्मेट है आप बोर्ड के साथ से बात कर सकते हो इस बारे में अब ये दूसरी एक और एक ये होता है इम्पोर्टेंट कि आप जब CO PO का मैपिंग करते हो और उस वक्त आपने कोई लेवल दी हुई है सपोज लेवल 2 लेवल 3 ये दी हुई है तो उसके जस्टिफिकेशन की जरूरत है उसके जस्टिफिकेशन की जरूरत है वो जस्टिफिकेशन कहाँ से दोगे आप तो उसके लिए ये यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है अब ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मीनिंग क्या है कि अगर आपके ये दो मैच हो रहे हैं तो आपका 1 आपने आपकी जो मैपिंग है वो 1 होगी अगर ये दोनों भी मैच हो रहे हैं मतलब ये 2 प्लस दिस 2 तो फिर आपकी लेवल हो गई 2 उसके बाद आप अगर ये पूरे के पूरे मैच हो रहे हैं तो आपकी लेवल हो गई 3 ये जस्टिफिकेशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको ये लगने ही वाले या फिर आप आपके जनरल लैंग्वेज में अगर आप जस्टिफिकेशन लिखते हो लेकिन जस्टिफिकेशन आपने देखा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट की इसमें लेगा यहाँ पर जब आप यहाँ पर जब कोई वैल्यू डालोगे तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर लिखना है ओके सो उसके लिए वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं या कम से कम आपके पास अब जनरल लैंग्वेज में जस्टिफिकेशन नॉर्मली परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही होते हैं कि जो जस्टिफिकेशन के लिए यूज किए यहाँ तक क्लियर अब आते हैं हम यहाँ पर
थ्योरी सब्जेक्ट को एक लेते हैं और उस थ्योरी सब्जेक्ट की अटेंडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। हर एक का करेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस टर्म वर्क, प्रैक्टिकल ओरल प्लस टर्म वर्क और साथ में आपके सिर्फ टर्म वर्क। तब सिर्फ टर्म वर्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको इसको समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपका लेते हैं हम यहाँ पर व्हाट यू कैन से द थ्योरी। ओके, तो थ्योरी के लिए अब आपको यहाँ पर अगेन ठीक है, थ्योरी में फिर से आपका इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल जो है वो 100%, एक्सटर्नल जो है वो आपके 100%। यहाँ पर फिर से यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट 50%, असाइनमेंट 50%, यूनिट टेस्ट में 2 यूनिट टेस्ट। ओके, सो ये आपका हो गया 25%, ये हो गया 25%। इंपॉर्टेंट, आप जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस ERP के हिसाब से वो है आपके असाइनमेंट। मैं भी ये कंसीडर करके चलता हूँ कि सिर्फ हमारे पास 3 असाइनमेंट है, हमने 3 असाइनमेंट लिए हैं स्टूडेंट्स। सो हर असाइनमेंट के आपका जो वेटेज हो गया वो हो गया 17%, 17% और 16%। ये होने के बाद आप यहाँ पर असाइनमेंट को आप 2 जगह से कर सकते हैं अटेंडमेंट में। ये डिपेंड करता है कि आपका यानी आपके बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। मैं बोल के सकता है क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते वक्त कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस में बच्चे असाइनमेंट सबमिट ही नहीं करते और कुछ ब्रांचेस में असाइनमेंट बच्चे ये सारे बच्चे यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। ये 2 तरीके की सिनेरियो है। तो जहाँ पर बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करते वहाँ पर आप ये रिजल्ट एनालिसिस से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और जहाँ के जो डिपार्टमेंट में बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो डायरेक्टली असाइनमेंट से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चॉइस है HOD की, वो कहाँ से इम्प्लीमेंट करना है मैं दोनों बता देता हूँ। हाँ, वो मैं बताएगा असाइनमेंट, और ये 2 जगह है, एक रिजल्ट एनालिसिस से भी कर सकते हो आप। 2 मॉड्यूल है हमारे पास, रिजल्ट एनालिसिस और असाइनमेंट। अब ये डिपेंड करता है HOD अपने लेवल पे डिसाइड करे कि कौन से मॉड्यूल से इसको इंप्लीमेंट करना है असाइनमेंट वाला। बाकी जितने बचे हुए हैं ये सब रिजल्ट एनालिसिस मॉड्यूल से इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी रिजल्ट एनालिसिस से, ये रिजल्ट एनालिसिस से, ये रिजल्ट एनालिसिस से। ये जो है ये HOD की चॉइस है। मैं पहला मेथड बता देता हूँ जो असाइनमेंट से हम हमारे डिपार्टमेंट में करते हैं। ये आपका यहाँ पर है, राइट? ओके, ये आपका सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट। मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर असाइनमेंट ऐड करूँगा। मार्क आप कुछ भी दे सकते हो, मार्क्स का और अटेंडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वेटेज का वेटेज और थ्रेशोल्ड, ये 2 चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपके अटेंडेंट का यहाँ पर आता है। स्टार्ट डेट, इंटरनल। अब यहाँ पे आता है वेटेज, जो मैंने आपसे नोट डाउन करने के लिए बोला था, यहाँ पर 17%।
ओके, उसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये तो सभी को पता ही होगा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है। थ्रेशोल्ड वैल्यू कहाँ पर यूज होती है पता है आप लोगों को? पास वो बच्चे जब अटेनमेंट कैलकुलेट करते वक्त कि अगर सपोज 40% आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू ली, तो यहाँ पर अगर मैंने 10 मार्क का है और यहाँ पर मैं 40% देता हूँ, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 4 मार्क या 4 मार्क से ज्यादा ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर कंसीडर होंगे। यहाँ पर आपने अगर 50% लिया तो फिर वो हो जाएगा आपके 5 मार्क या 5 मार्क से ज्यादा जो बच्चों ने ऑब्टेन किया है वो काउंट कैलकुलेट हो सकती है। वो नहीं है मैम, उसका अटेनमेंट ये मेन ये है, दो चीजें यहाँ पर आप आपके लेवल पे ले सकते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स आप आपके लेवल पे ले सकते हो, ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, थ्रेशोल्ड का मीनिंग समझ में आया आपके? उसके बाद प्लीज पुट दिस अनचेक, ये तुम्हारी चॉइस है, देन ऐड। अब यहाँ पर आपने अगर दो यूनिट मिलकर एक असाइनमेंट लिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का सेट है, क्वेश्चन सेट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आओगे, असाइनमेंट का सेट ऐड करोगे और इसमें एक 3 टाइप है। ये जो पहली टाइप है, इसमें आप फाइल भी आपका जो असाइनमेंट है वो आप टाइप करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, इसका फोटो निकालोगे, वो अपलोड करोगे, बच्चों को वो नजर आएगी पीडीएफ, बच्चे भी उसको सॉल्व करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, वो वैसे रहेगा। लेकिन इसमें अटेनमेंट नहीं आती, अटेनमेंट नहीं आएगी क्योंकि इसमें मार्क कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है, तो ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है सी टाइप, इसमें ये होगा कि आपने या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है, ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन है जो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट हो सकते हैं, वो सी टाइप में है। आप चाहो तो इस तरीके का असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का फॉर्मेट अब तक हमने फॉलो करते आए हुए, जो हमें नेट में अभी तक बताया हमने असाइनमेंट, वो डिस्क्रिप्टिव बताया हुआ है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव ले रहे हो और अटेनमेंट भी आनी चाहिए, तो ये वाला हम यूज करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे, क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद बच्चा पीडीएफ अपलोड करेगा, पीडीएफ अपलोड करने के बाद आप उसको मार्क दोगे, वहाँ पर वीक वाइज मार्क दोगे, अटेनमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि ये इसके लिए कि जो डिपार्टमेंट में बच्चे सभी असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ओके, सो ये इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो आप सिलेक्ट कौन सा करोगे? डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐड करने हैं। ओके, सो इतने टाइप के क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आप डिस्क्रिप्टिव देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव सिलेक्ट करेंगे।
हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन दोगे इसकी वर्ब के हिसाब से ये डिटेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपने वर्ब दी थी। लेकिन नॉर्मली अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन यूज किया हुआ है, और ये एक्सप्लेन जो आता है वो लेवल 2 में आता है। एक्सप्लेन लेवल 2 में आता है और इसमें लेवल ले लिए इवैल्यूएट, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना होगा। ओके, इवैल्यूएट करेक्ट ले लिया। ओके, सो ये हुआ आपका। उसके बाद अगर आप कुछ हिंट देना चाहते हो स्टूडेंट्स को तो वो हिंट दे सकते हो, और यहाँ पर भी मार्क्स जो भी आप देना चाहते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस हिसाब से आप मार्क दे सकते हो। ओके, लेट इट बी 5। उसके बाद नेक्स्ट अब आपके यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से आप CO सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपके अगर अलग अलग यूनिट भी है तो आपके जो यूनिट को मैप कर रहा है ये क्वेश्चन उस हिसाब से आप CO यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से। और ये अगर आपको कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिलेक्ट करके अगेन ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हो सिलेबस वगैरह, और यहाँ पर इस तरीके से आप ये असाइनमेंट का होगा। और इसमें ये असाइनमेंट के बाद इवैल्यूएशन कैसे हुआ वो भी बता देता हूँ। मुझे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आप स्टूडेंट को असाइन कर सकते हो, कौन कौन से स्टूडेंट हैं। कुछ ऐसे हो गए आपके कि जब आप स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर में असाइनमेंट लेना चाहोगे तो सबके लिए तो नहीं रहेंगे वो, तो यहाँ से आप सिलेक्टेड स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रेड नजर आ रही है। इस ग्रेड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो स्टूडेंट नजर आएंगे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए थे। ये सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किए थे। अब यहाँ से आप किसी एक को क्लिक कीजिए, उसका पूरा असाइनमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। और ये आपके क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैंने इमेज मेरा सब्जेक्ट ऐसा है उसमें क्वेश्चन जो है वो इमेज में होते हैं, तो मैंने इमेज अपलोड की है। यहाँ पर इमेज ये आ रही है, यहाँ पे डायरेक्टली आप उसके मार्क दो, ऑटोमेटिकली सारे मार्क का टोटल वगैरह वो कैलकुलेट हो जाएगा। अटेनमेंट भी ऑटोमेटिकली सारी चीजें। ये पहला मेथड असाइनमेंट, ये फर्स्ट मेथड है असाइनमेंट। दूसरा मेथड डायरेक्टली रिजल्ट एनालिसिस से यहाँ पर रिजल्ट एनालिसिस में अब थ्योरी के लिए हम कर रहे हैं, तो थ्योरी में हमारे पास क्या क्या है, असाइनमेंट है, यूनिट टेस्ट है, और एक्सटर्नल एग्जाम में इंसेम है और एडसेम एग्जाम। तो अब यहाँ पर वही इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया ऐड, उसके बाद ऐड मॉड्यूल, let it be unit test 1, marks 30, duration आपको जो भी देना है let it be 60, then date of conduct जो आपकी एंड डेट रहेगी असाइनमेंट की वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। किस टाइप का है यूनिट टेस्ट, किस में आएगा आपके, सॉरी इट इज व्हाट यूनिट टेस्ट ना, ओके। It is internal percentage 25 unit test, okay 25%। उसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू, ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका अगर इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, अगर आपने एक्सटर्नल एग्जाम के लिए 40% लिया है तो इंटरनल एग्जाम के लिए आप 50% भी बोलोगे। कहीं पे ये ब्लैक एंड व्हाइट में रूल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल में थ्रेशोल्ड वैल्यू में फर्क रहना चाहिए। ओके, सो ये यहाँ पर लेट इट बी 50%,
मैं स्टूडेंट को मार्क नहीं बताना चाहता हूँ, ऐड कर दूँ। ये मॉड्यूल ऐड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर जनरेट नहीं किया और डायरेक्टली स्टूडेंट में मार्क डाल दिए तो अटेंडमेंट नहीं आएंगी। अगर आपने क्वेश्चन पेपर जनरेट नहीं किया और डायरेक्टली स्टूडेंट में मार्क डाल दिए तो अटेंडमेंट नहीं आएगी। आपको कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है। सो बेटर है कि आप जब यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो वो यही से बनाइए। ओके, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ से जो कंपल्सरी है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अगर आपने ऐड नहीं किया तो क्वेश्चन भी ऐड नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन ऐड किए। उसके बाद अब आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐड करोगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओके, मैं बाद में जाकर इसे चेंज करूंगा। अभी मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा फास्ट करने के लिए। लेट इट बी। Again, I am taking this for 15 marks. It is just till understanding and remembering. It is of my unit number 1. Hence, I am taking CO1. Okay? ये ऐड किया। उसी तरीके से मैं और एक क्वेश्चन ऐड करूँगा, डिस्क्रिप्टिव। For 15 marks. Let consider that it is from my unit number 2. Hence I am selecting what? CO2. Okay. After this, come to the module test again. This is what unit test 1. Again we have to add unit test 2, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन वाइज आप यहाँ पर ये कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये जितने स्टूडेंट है वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। लेकिन मैं कुछ 4-5 स्टूडेंट के मार्क डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मार्क फिल करने के बाद आपको सेव आउट करना है। जो भी आपने मार्क पुट अप किया उसके हिसाब से यहाँ पर आपके अटेंडेंस लेवल आ जाएंगे और ये अटेंडेंस लेवल के बाद यहाँ पर ये आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये उस वक्त तक आपके अटेंडेंस यानी ओवरऑल सब्जेक्ट में उस वक्त तक कंसिडर नहीं होगा जब तक आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करोगे। जब तक पब्लिश नहीं करते हो ये आपके पूरे सब्जेक्ट में कैलकुलेट नहीं होगा। यानी सिर्फ आपने मार्क भरे हुए, एक्चुअली इसको पब्लिश करना जरूरी है। यहाँ पर आपने इसे पब्लिश किया,
जिसे मैं मॉड्यूल यूज करता हूँ, ठीक है। अभी यूनिट टेस्ट 1 हुआ, अगेन आई विल ऐड यूनिट टेस्ट 2, threshold value again I am thinking 50%. Okay, add. ये होने के बाद आपको करना है जनरेट क्वेश्चन पेपर। जनरेट क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ऑलरेडी एक ही ले रहा हूँ। मार्क्स डायरेक्ट 30 अंडरस्टैंडिंग, और बचे हुए मेरे सारे सीओस में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा नॉर्मली। ठीक है, और ये ऐड किया, ये क्वेश्चन पेपर जनरेट हो गया। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, चौधरी सर ये जो है हमारे दो हमने यहाँ पर सबमिट किए दो मॉड्यूल। अब दो मॉड्यूल के बाद अब हमारा यूनिट टेस्ट वाला आता है, सॉरी असाइनमेंट के आता है। दोनों यूनिट टेस्ट हम ऐड कर चुके हैं। यहाँ से न्यू मॉड्यूल, ओके। सो असाइनमेंट का वेटेज क्या था हमारा 17 17 16। ये असाइनमेंट नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पर 17। ओके, इसके लिए जो मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रहा हूँ 50। ओके, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जनरेट करेंगे हम यहाँ पर।
ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ जहाँ पर बच्चे पूरी तरीके से ये नहीं करते, सबमिट नहीं करते असाइनमेंट। ओके, जनरली हमारा जो पहला यूनिट होता है, पहला असाइनमेंट होता है, 2 यूनिट होता है, 1 और 2। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 COs यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और ये ऐड करने के बाद ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर जनरेट कर लिया। Question wise analysis. इसी तरीके से हमें असाइनमेंट 1, 2 असाइनमेंट 1 ऐड किए हुए थे, आपको असाइनमेंट 2 और 3 भी ऐड करनी होगी और उसे पब्लिश करना होगा। सेम मेथड रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब दूसरा जो बचे हुए हमारे वो इनसेंट और एंडसेंट रिमार्क्स। सो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर फिर आपको एक मॉड्यूल ऐड करना है, वो है इनसेंट लेट इट बी मार्क्स ऑफ 30। ये जो होता है हमारा वो 60 मिनट्स का होता है। जिस दिन आपका इंसेंट हुआ होगा वो डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ पर ये एक्सटर्नल है, राइट? ये एक्सटर्नल आएगा और इंसेंट का जो वेटेज था वो 30% था। एक्सटर्नल वेटेज ज़्यादा जरूरी है यहाँ, ओके? वेटेज, उसके बाद आपको जो पासिंग क्राइटेरिया रखना है 40% रखना है, 40% थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब ये होने के बाद यहाँ पर आपने मॉड्यूल ऐड किया, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। ये मॉड्यूल ऐड किया आपने, ये मॉड्यूल ऐड करने के बाद भी आपको क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जनरेट यहाँ पे नहीं करना है आपको। इसकी वजह ये है कि हमारे पास बिटवाइज मार्क नहीं रहते, हमारे पास बिटवाइज मार्क नहीं होते हैं, इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जनरेट नहीं करना है आपको। यहाँ पर सिंपली हमारे पास सिर्फ मार्क होते हैं कि उसको इंसेंट में कितने मार्क मिलेंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आओगे, इंस्ट्रक्शन कंपलसरी इसलिए आपको ऐड करनी ही है। ओके, और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नजर आया है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐड करना है और यहाँ पर आपको मेंशन करना है इंसेंट मार्क्स। इंसेंट जो होता है हमारा 30 मार्क्स का होता है, राइट? उसके बाद अब आपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लिया होगा, ये एक्सपेक्टेड होता है। और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको पता होगा कि कौन सी पीटीएल लेवल
पूछी गई है। तो आपके नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एनालाइज का होता है, जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं वो एनालाइज में रहते हैं, ओके। और जो आपके मॉडरेट लेवल के वो अप्लाई और अंडरस्टैंडिंग, और जो सबसे इजी होते हैं वो रिमेंबर। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा नॉर्मली मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि मेरा क्वेश्चन पेपर इन 3 लेवल में पूछा गया है, इसलिए मैं ये 3, और आप इंसेंट जो होता है वो पहले 2 यूनिट पे होता है, इसलिए पहले 2 CO में आप करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप CO1 CO2 यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट करोगे और ऐड कर दोगे, राइट। ये ऐड करने के बाद आपको वापस आना है मॉड्यूल लिस्ट में और क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में जाकर आपको सिर्फ मार्क करने होंगे, सिर्फ मार्क जो इंसेंट में मिल रहा है आपको वो मार्क बच्चों ने यहाँ पर पुट अप कर दिए, ओके। तो यहाँ पर सपोज उसको मिले 20, 10, 5, इसको भी फिर आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको एक सेंटर भी ऐड करना है। इसका जो वेटेज है 70%, रेशियो वैल्यू 40%, क्वेश्चन पेपर इसका भी आपको जनरेट करना होगा। Descriptive question, अब हमारा जो लास्ट के 4 यूनिट पर एंसर एग्जाम होता है, इसलिए लास्ट के 4 COs जो है वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस ऐड कर दूँगा।
ऑलमोस्ट आप सभी ऐड कर चुके हैं। अब अगर आप सब्जेक्ट के आउटकम अटेनमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको अटेनमेंट यहाँ पे नजर आएगी। कंप्लीट अटेनमेंट इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग करके हर चीज जो है ये यहाँ पर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप सीओ मैप कर पा रहे हो, अपने जो फीडबैक आप लेते हो या किसी तरीके का कोई वर्कशॉप लेते हो उसके लिए जो इनडायरेक्ट अटेंडेंट भी यहाँ पर आ जाएगी। पूरा ओवरऑल जो लास्ट में इंडिया में एक्सपेक्टेड होता है वो ये रिपोर्ट एक्सपेक्ट होती है सब। ओके, सो इस तरीके से आप ये हुआ थ्योरी का। अभी सिर्फ थ्योरी हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप अभी ऐसे है कि आपको है ना इसकी एक्सेल फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर जनरेट कर देगा, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर देगी, उसमें मार्क पुटअप कर देंगे और वो इंपोर्ट कर देंगे, तो मार्क ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। थोड़ा है हार्डवर्क, उसके बगैर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, मार्क पुटअप करें लेकिन उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, सो हम ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल मीन्स इंटरनेट। अब आप ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल होगा और टर्म वर्क, प्रैक्टिकल और टर्म वर्क। उसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा उसमें कैलकुलेशन क्या था। ठीक है, इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, राइट। अब इंटरनल इवैल्यूएशन में आपके जितने प्रैक्टिकल थे, हमने कंसिडर किया था 10 प्रैक्टिकल्स है, तो ये होगा आपका 10 ऐसे टोटल 10 प्रैक्टिकल्स, राइट। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल में कौन सा डॉक्यूमेंट बोला था मैंने आपको जो मेंटेन करना है। हर बच्चे को कौन सा प्रैक्टिकल आया हुआ है, वो ओरल के लिए जो सीओ वाइज था आपका, वो ओरल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हर स्टूडेंट को कौन सा प्रैक्टिकल, क्योंकि हर स्टूडेंट को सारे प्रैक्टिकल नहीं आते, इसलिए उसको सिर्फ एक ही सीओ का प्रैक्टिकल आएगा। इस हिसाब से आपको उस हिसाब से कौन सा प्रैक्टिकल आया हुआ है वो मेंटेन करना है। ओके, सो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको नेसेसरी रहेगा, तो ये वो रहेगा और ये डायरेक्टली 100% ही है, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, राइट। So let us implement it. इस प्रैक्टिकल के लिए हम करते हैं, इस प्रैक्टिकल के लिए करते हैं पहला इंटरनल करते हैं। ओके, पहले इंटरनल के लिए करते हैं। अब इंटरनल के लिए आपने एक मॉड्यूल ऐड करना है, लेट इट बी अब आप इसको सिंपल मेथड से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो बता रहा हूँ। आपके एक प्रैक्टिकल है उसको 10 मार्क कर देंगे, आपके 16 प्रैक्टिकल है तो टोटल कितने हो गए 160, राइट। हमारे 11 प्रैक्टिकल है तो मेरे हो गए 110। ओके, सो 110 सुबह यहाँ पर 110 मार्क डाल दूंगा यहाँ, राइट। सर आपने 30 का रखा हुआ है तो आप 30 से मल्टीप्लाई करना, वो मार्क यहाँ पे ये कर देना।
ओके, आपने 30 का लिया है इसलिए आपका 30 से हम 10 का लेते हैं। हमारा जो CAS का वैल्यूएशन है जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है वो इस तरीके से परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सबमिशन ऐसे करके हमारे टोटल 10 मार्क्स कैलकुलेट होते हैं हर प्रैक्टिकल के लिए। तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। आपका यहाँ पर जो कॉलम है लास्ट का उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरे टोटल 11 प्रैक्टिकल्स है इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 11 ये यहाँ पर मैंने 110 यहाँ पर ले लिया। ओके, उसके बाद ड्यूरेशन इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप कुछ भी डाल सकते हो। लेट इट बी 80 मिनट्स। आपका जो एंड सेम की डेट, एंड सेम जब जिस वक्त आप सबमिशन लेने वाले हो, ओके, सेमेस्टर एंड की, वो सेमेस्टर एंड की कोई एक डेट ले लीजिए आप। सपोज हमारा जो कंप्लीट हो रहा है वो 25 को हो रहा है। मैं इंटरनल की बात करूँ इसलिए यहाँ पर मैं इंटरनल सेलेक्ट करूँगा। इंटरनल सेलेक्ट करने के बाद वेटेज 100%। ये गौर से देखो, मैंने वेटेज आपको बताया होता है, यहाँ पे मैं 100% डालूंगा। यहाँ पे कंपल्सरी 100% डालना है। ओके, 100%। ये 100% के लिए, अब ये किसके लिए? तो मेरे तीनों बैचेस के लिए। लेकिन मैं 3 बैच सिलेक्ट करूँगा कि मुझे सारे बच्चे अब्सेंट कर देंगे, मैं अभी बैच। ओके, आप किसी भी बैचेस से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद ऐड थ्रेशोल्ड हाँ लगेगा सर। थ्रेशोल्ड रहेगा। लेकिन भी आपका इंटरनल है, मैं मेरे कंसीडर 50% कंसीडर करके चलूँ। अब अगली स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जनरेट करना। जब आप एक क्वेश्चन पेपर जनरेट करोगे तो जितने प्रैक्टिकल है आपको, हर प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन। जितने प्रैक्टिकल है हर प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 10। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का मैंने कंसीडर किया सर। आपके केस में 30 मार्क्स का आपने कंसीडर किया। ओके, सो आप ये डिपार्टमेंट में आपकी जो पॉलिसी है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल को 10 मार्क का कंसीडर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल मतलब है प्रैक्टिकल असाइनमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन ऐड करूँगा, ये क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपके टाइटल है, प्रैक्टिकल का टाइटल, जो आपके प्रैक्टिकल का टाइटल है यहाँ पर आएगा। ओके, सो ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उसके मार्क्स मार्क्स हमारे कंप्यूटर, याद रखो कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपने 10 मार्क है, यहाँ पे आप क्या डालोगे 10 मार्क डालोगे। हर डिपार्टमेंट में जो डिसाइड हुआ है वो यहाँ पर उस हिसाब से मार्क्स ये करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लेंगे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के बाद यहाँ पर वो किस लेवल का है। सो नॉर्मली जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो अप्लाई और एनालाइज पे होता है। प्रैक्टिकल जो होता है वो या तो अप्लाई पे होगा या एनालाइज पे होगा। अगेन केस स्टडी है तो केस स्टडी एनालाइज में जाती है, क्योंकि आपको उसके पूरा सर्च करना होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फाइंड करने होते हैं उससे, तो ये एनालाइज में जाता है। ओके, तो ये केस स्टडी मैं इसलिए यहाँ पर एनालाइज से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये किस सीओ को मैप कर रहा है। अब कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जैसे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रैक्टिकल है, वो हर प्रैक्टिकल सारे सीओ को मैप करता है। ओके, सो वहां पर आपको जितने सीओ को मैप कर रहा है, तो मेरा यहाँ से CO4, CO5 और CO6 ये टोटल मेरे सारे के सारे सीओ को मैप करता है। ओके, सो ये यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपने ऐड किया। इसके बाद फिर से आप क्या करोगे,
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर लेट इट बी प्रैक्टिकल 2, ठीक है, प्रैक्टिकल 2 अगेन इसके मार्क्स 10, let it be of apply, again this and this, okay, कुछ रहा है add, okay, ऐसे सभी प्रैक्टिकल में कुछ ही ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, आपने सारे ऐड कर लेंगे, ओके, डिस्क्रिप्टिव let it be AI 1 of 10 marks, let it be of apply, और फिर ये पहले 3 को सपोज मैप करें, राइट, ओके, इस तरीके से आपने सारे प्रैक्टिकल आप ऐड कर लिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर जनरेट हो गया। क्वेश्चन पेपर जनरेट होने के बाद जब आप मॉड्यूल लिस्ट में जाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है, यहाँ पर इस तरीके से जो मार्क नजर आ रहे हैं आपको, ये मार्क कहाँ से आएंगे? तो ये मार्क आएंगे आपके ये कॉलम से, इस कॉलम के जो मार्क्स है आपके वो यहाँ पर आएंगे। हर प्रैक्टिकल के लिए आपके यहाँ पर है, ये पहला प्रैक्टिकल, उसके मार्क वो बचेंगे, दूसरे प्रैक्टिकल के ऐसे, ये जब आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करोगे तभी ये पॉसिबल। लास्ट में अगर करके बैठते तो उसमें थोड़े गलतियाँ होने के चांसेस है। एक प्रैक्टिकल आपने चेक किया, वहाँ पे उस प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे। या अगर आप एक काम करो कि ये शीट को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखो आपके पीसी पे, आप वो कंटिन्यूअस भरते रहो उसमें, और जिस वक्त सेमेस्टर एंड हो जाएगा तब वो शीट अपलोड कर दो तो मार्क्स आपके आ जाएंगे। और शीट कहाँ से डाउनलोड होती है? यहाँ पर एक्शन में जाओगे आप, यहाँ से रिपोर्ट एक्सपोर्ट में से आप पहले एक्सपोर्ट कर दो, मार्क्स राइट, ओके। सो मैं यहाँ पर टेस्ट केस के लिए कुछ मार्क्स डाल देता हूँ यहाँ पर, लेट इट बी 8 7 2 7 8 7 8 8 then 2 4 let it be 6 और बाकी सबको ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये उस वक्त तक कंसीडर नहीं होगा जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे। पब्लिश करना जरूरी है। ठीक है, ये हुआ आपका कौन सा इंटरनल कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो इंटरनल ये वाली ब्रांच थी, इंटरनल वाली 100%। अब एक्सटर्नल वाली, ओके। और ये भी थोड़ा सा कॉपी इधर ध्यान दो कि इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर मॉड्यूल ऐड करना है। ये हुआ आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मार्क्स लेट इट आइदर 50 और आइदर 25, यही होगा। इसके अलावा जो भी है आपका, उसके बाद ड्यूरेशन 3 आवर्स लेते हैं हमारे इसमें ब्रांच में। यहाँ पर डेट, यहाँ पर केयरफुली एक्सटर्नल सिलेक्ट करना, वेटेज अगेन 100%, ओके। थ्रेशोल्ड वैल्यू अब यहाँ पर डिपेंड करता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बाद होती है, ओके। इसके बाद तो ये मैं तीनों ब्रांचेस, तीनों बैचेस के लिए मैं फिलहाल एक ही बैच सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपका ऐड मॉड्यूल, ऐड मॉड्यूल के बाद जो अगली चीज़ करोगे आप वो है क्वेश्चन पेपर जनरेट करोगे। अब क्वेश्चन पेपर जनरेट करते हो अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे प्रैक्टिकल आप लेने वाले हो ना बच्चों, वो प्रैक्टिकल सपोज अब मेरा टेस्ट कर लिए पहला प्रैक्टिकल, तो वो तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ नहीं सकता, बचे हुए पूछूंगा। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, जो प्रैक्टिकल आप रखने वाले हो, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐड करें, लेकिन किस मैकेनिज्म में वो देख लो, ओके। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप ऐड करोगे, अच्छा एक ही प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, ओके। ऐड, इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐड नहीं करना है। इसके बाद आपको जो ऐड करना है वो सेक्शन ऐड करना है,
अब सेक्शन ऐड करोगे, टोटल क्वेश्चन जो आप पूछने वाले हो, राइट, और उसमें से कितने उसने अटेंड करने चाहिए। ओके, सपोज मेरे 11 प्रैक्टिकल तो लेकिन केस स्टडी का था और 8 जो है वो पेड है, तो मैं वो नहीं रखने वाला हूँ, 2 प्रैक्टिकल नहीं रहेगी तो मेरे 9 है। सपोज 9 उसमें से वो अटेंड कितने करने वाला है, ये आपने ऐड किया। और फिर अब आपको यहां से क्वेश्चन ऐड करना, इस साइड से नहीं, जो क्वेश्चन ऐड करना है आपको वो यहां से ऐड करना है बेटा। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ से ऐड किया, यहाँ से जो भी चीज़ ऐड की जाती है वो कंपल्शन में जाती है, कंपल्सरी में जाती है। यहाँ से जो ऐड करोगे आप वो कंपल्सरी में जाएंगे, और यहाँ से जो ऐड करोगे वो उतने बंच में से कितना अटेंड करना है उसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो आपको ऐड यहाँ से करने हैं इस सेक्शन में से। यहाँ से फिर से आप ऐड करोगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेट इट बी PR1, उसके बाद अगेन ये जो आपका 50 मार्क्स है तो 50 मार्क्स यहाँ पर हर क्वेश्चन का मार्क वही लेंगे जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क। ओके, 25 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है आपका तो 25 मार्क्स लेंगे। तो यहाँ पर सपोज मेरा 50 मार्क्स है, उसके बाद अप्लाई, और ये किस CO को मैप करता है, ये CO लेट इट बी ये पहले को मैप करता है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर लेना है। उसी तरीके से आपको यहीं से अगला प्रैक्टिकल ऐड करना है। ओके, यहाँ से आपने अगला प्रैक्टिकल ऐड किया, लेट इट बी PR2, सभी क्वेश्चन के मार्क्स सेम रहेंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पर ये चेंज हो सकता है, लेट इट बी फॉर CO2 ऐड। उसके बाद फिर आपका बस ये 3 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, आपने पूरे क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, पूरे प्रैक्टिकल ऐड कर लेंगे। ओके, लेट इट बी PR3, then 50 मार्क्स अप्लाई, लेट इट बी ये बाकी सबको मैप कर रहा है। ओके, एंड इस तरीके से आपने सारे प्रैक्टिकल ऐड कर लिया सपोज, और फिर वापस आपको आना है मॉड्यूल लिस्ट में। अब वो जो डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन करके रखा हुआ था, जो बच्चे को कौन सा प्रैक्टिकल आया होगा, इस पर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल की साइन दी, उसकी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में जाओगे, और यहाँ पर वो मार्क्स पुटअप करोगे, वो मार्क्स उसी प्रैक्टिकल में पुटअप करने हैं आपको। सब उसको प्रैक्टिकल 1 आया हुआ है तो उसके मार्क्स यहाँ पर पुटअप करने हैं, उसको ऐड करने हैं। अगर उससे प्रैक्टिकल 2 आया था नेक्स्ट स्टूडेंट को, तो आपको उसके मार्क पुटअप करने सपोज 20, और अगर उसे प्रैक्टिकल 3 आया था तो उसके मार्क पुटअप करने सपोज। ओके, इस तरीके से आपके अगर बहुत सारे प्रैक्टिकल है, ऐसे बहुत सारे कॉलम रहेंगे, लेकिन हर रो में सिर्फ एक ही कॉलम में वैल्यू है प्रैक्टिकल की। ओके, सो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपने ये किया हुआ है, बाकी सबको अपसेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेव किया आपने। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिश। ओके, यहाँ तक समझ में आया? इतना ही करना है हमको प्रैक्टिकल, और इसके लिए डायरेक्टली आपका कोर्स आउटकम
सॉरी अटेंडेंट यहाँ पे आएगा। ये इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 2 मार्क्स डाले तब वो लेवल अचीव हुई, ओके, इसलिए यहाँ पर ये 0 0 नजर आ रहा है। इस तरीके से आपका अटेंडेंट ये किसके लिए था? प्रैक्टिकल प्लस टर्म वर्क, ये प्रैक्टिकल प्लस टर्म वर्क। अगर यहाँ पर हमने T3 के लिए किया था, T2 के लिए था। अब ये कंसीडर करो कि ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है आपके प्रैक्टिकल प्लस ओरल। तो तब क्या करोगे, क्या चेंजेस आएंगे से? एक्सटर्नल के क्वेश्चन पेपर में चेंज आएंगे, एक्सटर्नल के क्वेश्चन पेपर में चेंज आएंगे। तो मैं उससे कितना याद करके बता दूँ आपको। आप यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम मार्क्स 50 मार्क का ही हो रहा है, सपोज कंसीडर करके चलिए आप। ड्यूरेशन रेडिटिविटी ऑफ 60 मिनट, एग्जाम की डेट, एक्सटर्नल और वेटेज, ओके 100। उसमें से कोई एक बैच आपने सिलेक्ट किए हैंड मॉड्यूल, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर जनरेट करोगे, ये क्वेश्चन पेपर जनरेट करते वक्त आपको यहाँ पर हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जितने आपके सीओ है उतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको ऐड करें। जितने सीओ है उतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐड करने हैं। हर सीओ के लिए एक डिस्क्रिप्टिव, हर सीओ के लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सपोज यहाँ पर स्टूडेंट्स आर एबल टू demonstrate the aim of AWS। सपोज ये सीओ है, इसे कंसीडर करके फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, ओके बोलो। यहाँ पर मार्क्स कितने डालूंगा, और ये सब कंपल्सरी है, याद रखो सारे सीओ उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इक्वली मार्क दोगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे 50 मार्क 50 डिवाइडेड बाय, सपोज आपके 4 सीओ है तो वो हो जाएगा, अगर 6 है तो 6 सीओ, ओके। मैं कंसीडर करता हूँ 5 सीओ है तो यहाँ पे 10 मार्क है, राइट। उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, ओके। सो लेट इट बी 10, सॉरी लेट इट बी 10, जो भी लेवल है आपका उस सीओ का पर्टिकुलर, और उस सीओ को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहला सीओ है, ऐसे टोटल कितने सीओ ऐड करने हैं हमें, जितने हमारे, ओके। मैं कंसीडर करता हूँ मेरे 5 सीओ से, मैं यहाँ पर 5 ऐड करूँगा। अगेन ऐड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेट इट बी सीओ 2, मार्क्स 10, understanding CO, then add descriptive question, next CO 3, 10 marks, let it be for CO 3 and 4. ठीक है, इस तरीके से आप हर सीओ के मार्क यहाँ पर, इस तरीके से आप हर सीओ के मार्क ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, यहाँ पर उनके मार्क्स पुट करोगे, ओके। अगर अब आपने क्या किया है, उसको कितने मार्क मिले हुए हैं, फिर अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, सब्जेक्ट टीचर उसको कैसे डिवाइड करते हो, क्या करते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बेटर, ओके। सो यहाँ पर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, सपोज को 30 मार्क्स मिले, लेट इट बी 27 मिले, लेट इट बी 9 9 9,
फेल हुआ है, और यहाँ पर फिर आपको इससे प्रूफ के लिए लेकिन वो मेंटेन रखना होगा, वो जो एक्सटर्नल की साथ अपन ये लिखी है। तो बेटर है कि ये जब आप जनरेट करोगे ये फाइल को डाउनलोड करो, इसमें प्रिंट आउट निकाल लो और एक्सटर्नल के सामने डायरेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से सेव, पब्लिश, और यहाँ पर जब आप और एक इंटरनल में ऐड करोगे जिस तरीके से हमने सेम वही वे में जिस तरीके से प्रैक्टिकल प्लस कन्वर्ट में किया था वही वे में यहाँ पर ओरल प्लस कन्वर्ट में भी इंटरनल ऐड करेंगे, राइट। एक ही क्वेश्चन पेपर उसके सारे प्रैक्टिकल और दूसरे ओके क्वेश्चन अंडरस्टूड, ओके। अब ये पब्लिश कर दिया आपने, ये पब्लिश हो गया। अब ये कौन से हुए हमारा हुआ अभी थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल प्लस कन्वर्ट, प्रैक्टिकल प्लस ओरल, और अगर सिर्फ कन्वर्ट रहा तो तब एक्सटर्नल वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ इंटरनल पार्ट रहेगा, वहाँ से आप मार्क कर सकते हैं। और ये अटेंडेंट आ गया। अब ये अटेंडेंट आने के बाद बेटा ये जब आप वो पूरी तरीके से पब्लिश ना करोगे वो सारी चीज़ों को, तो फिर ये यहाँ पर सब ऐड होंगे, ये सब ऐड होंगे मतलब ये अपने ये सब जब ऐड हो जाएंगे तो वो ऐड होने के बाद हमें वो पता चलेगा कि कौन से COs हमारे मैप नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और उस हिसाब से फिर हमें वर्कशॉप प्लान करनी होगी नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट सेमेस्टर पीओ मैप नहीं हो रहे ना, जो पीओ मैप नहीं हो रहे हैं ये सारा नीचे देखो सर एवरेज आता है इसमें, ये यहाँ पर सभी का एवरेज आएगा। जो मैप नहीं हो रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर उसके लिए वर्कशॉप करनी चाहिए। वो आपको कोई क्वेश्चन है? डन। इस तरीके से आपकी सारी ये इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी प्रो डिपार्टमेंट ने अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। बाकी सबने मुझे कल बोला था कि आप सबको करना सीएम के लिए कर दें। थैंक यू। टाइप देखो सर, टाइप ए में नहीं आएगा, टाइप बी डिस्क्रिप्टिव के लिए, और टाइप सी जो है वो आपका एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करेगा और आपके डायरेक्ट आ जाएगा। असाइनमेंट ऑटोमेटिकली पेश हो जाएगी वहाँ से। सर आप एक काम करो, एक टाइप सी क्वेश्चन पेपर आप जनरेट करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट में होगा, डायरेक्टली आपका उधर कैलकुलेट होगा। सर मैं क्या कह रहा हूँ, टाइप बी में अटेंडमेंट नहीं आती, टाइप बी में वहाँ क्वेश्चन वाइज है ना, आपने क्वेश्चन पेपर जनरेट किया हुआ है ना। स्टूडेंट एक ही फाइल अपलोड करेंगे, वो आपको नजर आएगी, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन में मार्क देंगे।